Hi, very good afternoon, everyone. Thanks for joining us today on Saturday afternoon, Gyaniki Tech Talk session, episode 67. Today, we have joined by Mr. Himanshu Patel. He is a founder of eFuel Products Private Limited. Coming to his background, Himanshu is graduate from mechanical engineering stream. He has diverse 10 years expertise experience in renewable energy sector and solar system, and recently he have a very vast knowledge in electric vehicle charging system. Welcome Mr. Himanshu Patel in our Tech Talk session. So welcome. Affordable and future-ready chargers accessible across the country. And today we will discuss EV infrastructure in India, current state of India's EV market, type of chargers that are available in the market, and what are the coming opportunities in the charging sector. Then key challenges of deploying EV chargers and infrastructure in India. Then invest related opportunities and growth plans, and what kind of solution we are offering right now. So uh, these are the topics that we are going to discuss today. And uh, there are many people who doesn't know about the opportunities which are there in this particularly EV charging sector. So we decided to choose this topic for the today's session. And let me present my screen first, then we can go ahead. Okay, so let's see the overview of current EV market and EV infrastructure. What's the current stage, what India is targeting, and what's the government initiative. So in current stage, two-wheeler and three-wheeler, four-wheeler bus truck कितना किस speed से grow कर रहा है, which has been recorded at 44% CAGR annually. And current number of operational public charging stations are not more than 10,000. That is what I believe. So और इंडिया क्या टारगेट कर रहा है, that is 30% of EV penetration by 2030 under national electric mobility mission. Then what should be the number of electric vehicle by the 2030? That's India is targeting close to 50 million. मतलब 5 करोड़ cars का plan इंडिया कर रहा है by 2030. गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए है, फेम टू स्कीम, PM E-Drive और DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्या प्रोग्राम्स है पर्टिकुलरली फॉर द EV एंड फॉर द EV इकोसिस्टम. ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे आज. So first let's understand the current stage कि vehicles का क्या number है, particularly in two-wheeler and three-wheeler domain. So the biggest market share is held by the two-wheeler and three-wheeler. Two-wheeler, three-wheeler ही dominate कर रहे हैं अभी Indian EV ecosystem में. I believe four-wheeler is also taking up right now, but still the number is not at close to the two-wheeler and three-wheeler. So I think the recorded number for the last year for two-wheeler was for four-wheeler was close to 85 to 90,000, which is very less compared to the IC engine vehicle. And अगर हम बात करें कि operational public charging station कितने हैं, so those are just 10 to 12,000 numbers of public charging stations which are operational currently. So in both cases, for the charging infrastructure for the four-wheeler and buses segment, numbers are very low. So यहाँ पर we need to focus as a OEM of four-wheeler, as a charger manufacturer और अदर करंट स्टेक होल्डर, सबको यहाँ पे फोकस करने की जरूरत है. बिकॉज जो हमारा प्लान है बाय 2030 30% ऑफ EV पेनिट्रेशन, उसको अचीव करने के लिए हमें अपना करंट जो CAGR है वो भी इम्प्रूव करने की जरूरत है. तब जाकर हम कहीं पर 50 मिलियन टारगेट को अचीव कर सकते हैं. I believe government is
showing good interest in the promotion of EV ecosystem. रिसेंटली फेम टू स्कीम भी आप सबको पता ही है किस टाइप से इम्प्लीमेंट करी, बट जो अभी PME ड्राइव आई है बसेस के लिए, देन चार्जर के लिए, फॉर चार्जिंग इकोसिस्टम दे हैव अलोकेटेड क्लोज टू 2,000 crore rupees, which is a good number for 2 years of plan. तो आई बिलीव अगर हम ये सारा एलोकेशन हम कंज्यूम कर पाते हैं तो काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अगले 2 साल में डेवलप हो सकता है। अभी रिसेंटली मैंने DST का भी एवोल्यूशन प्रोग्राम देखा, जो कि EV इकोसिस्टम में अगर आप कुछ भी कोई नए स्टार्टअप, कोई नया प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ सब्सिडीज और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कमर्शियल हेल्प करी जा रही है। तो आई बिलीव गवर्नमेंट इज गोइंग गुड इन द डायरेक्शन ऑफ EV इकोसिस्टम। Let's talk about the EV infrastructure, the current EV infrastructure, the chargers available in the market right now. So अगर हम बात करें AC chargers की, so 3.3 के AC chargers generally start from 3.3 kilowatt and which goes up to 22 kilowatt. अगर 3.3 किलोवाट का नंबर देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए ही है, बट इससे ऊपर जाए तो टाइप 2 में 7 किलोवाट, 11 किलोवाट, 22 किलोवाट है, जो कि 4 व्हीलर बसेस में यूज होते हैं। फिर DC चार्जर्स में अगर बात करें तो 15 किलोवाट से 360 किलोवाट तक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन, फास्ट चार्जर्स आपको देखेंगे। बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस का भी काफी अच्छा नंबर है। अभी काफी बैटरी कंपनीज हैं जो स्वैपिंग स्टेशंस के थ्रू काफी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है। तो देयर इन ऑल सेगमेंट, इन चार्जिंग एंड बैटरी स्वैपिंग, दोनों सेगमेंट में काफी अच्छा ग्रो देखने को मिल रहा है लास्ट एक डेढ़ सालों में। एक्सक्यूज मी हिमांशु, आपका स्क्रीन में पूरा कंटेंट दिख नहीं रहा, आधे स्क्रीन में दिख रहा है। इज इट ये सबके लिए है और कि मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है? दैट स्लाइड्स ना पूरे स्क्रीन में दिख नहीं रहा है, हाफ स्क्रीन में दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। यू नीड टू मिनिमाइज योर स्क्रीन और मैक्सिमाइज योर स्क्रीन, ट्राई टू चेंज द रेजोल्यूशन। ठीक, इट इज वेरी मच विजिबल। ओके, shall I continue now? Yeah, sir, you can continue. Yeah, you may continue. Okay. So, what are the current challenges in deploying the EV charging infrastructure? हम उस पर अगर बात करें तो ऐसे बहुत से चैलेंज हैं, बट मेजरली जो इश्यूज हैं मैं अगर एड्रेस करना चाहूँ तो दैट इज लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन EV टेक्नोलॉजी एंड चार्जिंग प्रोसेस। देन बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन है जिसको भी हम अभी एड्रेस करेंगे, बट मेनली चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पब्लिक अवेयरनेस या ट्रस्ट इश्यूज हैं वो क्या है कि अगर व्हीकल साइड पे बात करें कि व्हीकल साइड में गाड़ी अगर क्लेम करती है 500 किलोमीटर, बट वो 200 चल रही है, 250 चल रही है, एक वो बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे लोग चूज नहीं करते हैं EV ओवर द IC इंजन व्हीकल। एक वो प्रॉब्लम है। अगर गाड़ी ले भी लिया है तो चार्जिंग में कहाँ पर चार्जिंग मिलेगी इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है। अगर आप कोई रूट प्लान कर रहे हैं, कोई टूर प्लान कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप कहाँ तक आप पहुंच सकते हैं EV पे डिपेंडेंसी बना करके। ये प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है। तो ये हम एक इस इकोसिस्टम में काफी टाइम से ये है कि बैटरी का जो कॉस्ट है वो इतना हाई है कि 50% बैटरी का ही कॉस्ट है। 5 साल बाद 6 साल बाद जब बैटरी चाहिए तो वो इतना कॉस्टिंग है कि लोग सोचते हैं अरे भाई ये क्या हो गया। सर बैटरी का कॉस्ट बिल्कुल सही पॉइंट आपने बोला है, बट ये देखिए जब कोई टेक्नोलॉजी नई होती है तो उसमें कुछ कॉस्ट तो रहती है। इसलिए तो अगर आप दूसरी कंट्रीज में जाएंगे, जिन कंट्रीज में ये EV इकोसिस्टम बहुत अच्छा फ्लरिश कर रहा है, उसका रीजन ये भी है कि कॉस्ट को कम करने के लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ इनिशिएटिव, सब्सिडीज, प्रोग्राम और ये सारी चीजें करती है। कैपिटल सब्सिडी देना और यूजर्स को गाड़ी कोई यूजर बाय कर रहा है तो उस पर सब्सिडी देना, ऐसे करके कॉस्ट कम करने की कोशिश करती है। ये
इस पॉइंट को भी गवर्नमेंट टेकअप करने के ट्राई कर रही है। आप देखना अभी सब्सिडीज का भी प्रोग्राम लॉन्च किया था। 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में तो ऑलरेडी सब्सिडी है, 4 व्हीलर और बसेस में भी कुछ सब्सिडी का प्रोग्राम है। फिर पीएमई ड्राइव है जो बस के लिए सब्सिडी का अलग से प्रोग्राम उन्होंने बनाया। तो गवर्नमेंट टेकअप हाँ। करने की कोशिश कर रही है, बट बात ये क्या है हम कि जैसे सोलर है ना, सोलर में हर चीज बड़ी स्ट्रीमलाइन हो चुकी है, और ईवी में जैसा आपने कहा कि अभी स्ट्रीमलाइन होना थोड़ा सा बाकी है, क्योंकि सोलर में पहले कोई लगाता नहीं था। अब क्या है, लोगों को काफी इंटरेस्ट हो गया है। अब उनको 2-2.5 लाख से फर्क नहीं पड़ रहा। अब उनको ये है कि उनकी कॉस्टिंग जो है वो, क्योंकि ऑब्वियसली स्टेट सब्सिडी है प्लस आपकी सेंट्रल में सब्सिडी है, और चीजें मतलब क्लियर हैं। बट ईवी में थोड़ा सा अभी मेरे ख्याल से क्लैरिटी आना बाकी है थोड़ी सी। बट सर सोलर टेक्नोलॉजी को मार्केट में आए हुए इफ आई टेल यू, ये 2010 के बाद से सोलर इंडिया में काफी ग्रो करने लगा। तो वो स्टेबलाइजेशन स्टेबिलिटी आने में फिर भी 15 साल लग गए। 2010 से 2005 2025 हो गए, 15 साल लग गए स्टेबिलिटी आने में। गवर्नमेंट को भी पॉलिसी, एक स्टेबल पॉलिसी फिक्स करने में कि कैसे सब्सिडी देनी है, क्या चैनल होनी चाहिए, ये सारा कुछ करने में उनको 15 साल लग गए। अभी ईवी को मैं समझता हूँ 5 साल भी नहीं हुए, तो वो स्टेबलाइज होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। बट जैसे जैसे ये हम और ईयर्स पे पास करते जाएंगे तो बैटरी के प्राइसेस, गाड़ियों के प्राइसेस भी कम होते जाएंगे। प्लस गवर्नमेंट भी एक फॉर्मल और स्टेबलाइज पॉलिसी लेकर के आएगी, तो उस चैनल को रोबस्ट बनाना गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट अगर कर लेती है तो बाकी सारी चीजें फिर अपने आप स्ट्रीमलाइन हो जाती। तो आई बिलीव अगले 4-5 सालों में गवर्नमेंट जो एम कर रही है बाय 2030 कुछ नंबर अचीव करना चाहती है, बाय 2030 मैं भी ये बिलीव करता हूँ कि शायद ये स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अब हालांकि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो कुछ भी हमको यहाँ पे करना है, रोल आउट करना है, उसको नीचे ग्राउंड लेवल पे दिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आई बिलीव अगले 4-5 सालों में राइट। काफी कुछ चेंज होने वाला है। और बिल्कुल। बाकी स्टेट टू स्टेट डिपेंड अलग करता है सारी चीजें। हाँ, अब ये पॉइंट्स भी है कि गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी कोई पॉलिसी बना देती है, इसके बाद स्टेट को उसको इम्प्लीमेंट करना है। स्टेट भी इम्प्लीमेंटेशन में अभी आप देखेंगे कि कुछ स्टेट्स हैं जो ईवी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। अगर मैं चार्जिंग में बात करूं, केरला, कर्नाटका बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नागपुर महाराष्ट्र, बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ महाराष्ट्र बहुत हाँ। अच्छा काम कर रहा है। बट आप एमपी में हो या यूपी में या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हो, तो वो नंबर्स नहीं मिलेंगे आपको। तो उसका रीजन ये कि स्टेट भी उतना एक्टिवली उस चीज को परस्यू करना चाहिए, जो कि कुछ स्टेट्स में है, कुछ में नहीं है। तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट आई बिलीव अगले 2-5 सालों में काफी कुछ चेंज होने वाला है। ये सारे फिगर्स बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो जाएंगे। एक्चुअली क्या हो रहा है सर कि मैं बताऊं कि मार्केट में ना, सॉरी मैं आपके सिर्फ 2 मिनट्स लूंगा बिकॉज इट इज एन नहीं, ओपन सेशन, तो सॉरी बस 2 मिनट ही लूंगा। क्या हो रहा है कि जैसे इफ यू आर गुड राइट, तो उसमें क्या हो रहा है प्रॉब्लम कि देयर आर मल्टीपल पीपल हु हैव कम इन द इंडस्ट्री फॉर दिस राइट। XYZ नेम होंगे, मैं नेम नहीं लूंगा यहाँ पर कोई भी, ठीक है। इट इज अ ब्रांड ऑल्सो, नॉन ब्रांड ऑल्सो। अब उसमें क्या हो रहा है, समवन इज ऑफरिंग सम फैसिलिटी, समवन इज ऑफरिंग सम फैसिलिटी, right? In that context, obviously the end user is getting confused. He is not coming up to the reliability or the things, right? कोई कह रहा है मैं खाली इंस्टॉल ही करके दूंगा, कोई कह रहा है मैं तो इंस्टॉल के साथ आपको 6 रुपए पर यूनिट भी दूंगा, 10 रुपए पर यूनिट भी दूंगा। तो पीपल, उसमें क्या हो रहा है ना कि एक जो बिलीफ वाला फैक्टर है वो लोगों को बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, खासकर कमर्शियल में। क्योंकि रेजिडेंशियल में आप दिल्ली एनसीआर को ज्यादा कैप्चर नहीं कर सकते। You can only capture with the high rise and these kind of the structures basically जहाँ उनकी पार्किंग्स वगैरह है। तो ये मुझे लगता है एक फैक्टर है कि अगर स्टेबलाइज हो जाए ये चीज भी तो बेटर है। सर कोई भी इंडस्ट्री जब न्यूली इंट्रोड्यूस होती है और लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो हर टाइप के लोग आते हैं बिजनेस करने के लिए। कोई कुछ ऑफरिंग देता है, कोई कुछ करता है। सस्टेन करना थोड़ा सा सबके लिए ये पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जब तक चीजें स्टेबलाइज होती हैं तब तक सस्टेनेबिलिटी सिर्फ वही लोग रह जाते हैं जो जेन्युइन है, जो जिन्होंने सही में इकोसिस्टम में प्रॉपरली पार्ट लिया है, कुछ अपने इनपुट्स दिए हैं और कुछ अपनी चीजों को इम्प्रूव किया है। और जो लोग सिर्फ फ्रॉड कर रहे हैं या कुछ गलत कमिटमेंट करके इकोसिस्टम का पार्ट बने हैं, वो वैनिश हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसी चीज है कि हर इंडस्ट्री में ऐसा होता है। आप कुछ भी देख लें, इवन सोलर में भी देख लें। पहले 5-7-8 साल पहले कुछ अलग सिनेरियो था जो आज अलग है। इसके अलावा इससे पहले जो इंडस्ट्री ग्रो करी है उनमें भी यही सेम स्टेज। तो सेम ही
पैटर्न है जो हर इंडस्ट्री में फॉलो होता है। जब स्टार्ट होता है तो हर कोई उसमें से एक हिस्सा लेना चाहता है, और कुछ लोग होते हैं कि इमीडिएटली कुछ पैसे कमा करके आगे निकलना चाह रहे हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बने रहना चाहते हैं इंडस्ट्री में, फ्लरिश करना चाहते हैं इंडस्ट्री को भी और खुद को भी। वो लॉन्ग टर्म प्लान लेकर के आते हैं, वो अलग लोग होते हैं। उनका इनिशियली वो हमको ऐसा लगता है कि ये बहुत महंगा बेच रहे हैं या बहुत ज्यादा पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। वो आपको देखने शुरू में वो देखने में महंगा लगता है, बट वो बाद में काफी फ्रूटफुल होता है। तो हर इंडस्ट्री में ये सेम पैटर्न मैंने देखा है। इससे पहले मैं सोलर में भी काफी एक्टिवली काम किया, तो वहां पे भी मैंने देखा है। प्लस अगर बात करें इससे पहले जो इन्वर्टर और बैटरी इंडस्ट्री जब इंडिया में ग्रो करना चालू करी, तब सेम स्टोरी थी। आप देखना तब कितनी बैटरी मैन्युफैक्चरर थे, और आज कुछ लिमिटेड बैटरी मैन्युफैक्चरर जो मार्केट रूल करते हैं। तो सेम ही पैटर्न हर जगह चल रहा है अभी। बिल्कुल। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी हैं, फिर काफी हेल्प करती हैं, और जो लोग पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो फिर उनके लिए तो हेल्पफुल ही होती है, बट जो ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ पॉलिसी है उनके लिए डेफिनेटली वो प्रॉब्लमेटिक हो ही जाती है। ये चैलेंजेस तो मैं समझता हूँ, बिल्कुल आपका पॉइंट सही है फिर। हाँ, बस यही है, क्योंकि देखिए जो बड़े ब्रांड्स हैं, टाटा वगैरह, ये इन चीजों में नहीं पड़ना चाहते, लाइक आफ्टर सेल में बहुत ज्यादा ये सब में। अब क्या होता है, जो पहले इनिशियल आदमी आता है जिसको इस मार्केट का भी इतना नहीं पता, तो वो सीधा टाटा बोलता है या जियो, जो भी एक्स वाई जेड बोलेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिनकी आफ्टर सेल सर, क्योंकि क्या होता है, जैसे जो गन्स होती हैं इसमें, राइट। अब मान लो कि कोई भी नॉर्मल कस्टमर है, हर इंसान अपने घर की चीज बहुत संभाल के रखता है, लेकिन जब वो हाईवे पर होता है, ये गन उसने नहीं करी, नीचे रख के फेंक गया या कुछ है, मतलब लाइक ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो उसमें कई कंपनीज है वो इंश्योरेंस भी नहीं दे रही हैं। अब जिसके लिए लगी है उसके तो बेचारे का नुकसान हो गया ना, मतलब। तो उस फैक्टर्स को मैं लेके बात कर रहा था। कहीं पे 16,80,000 की मशीन है, कहीं पे यही मशीन आपको 9 लाख की मिलेगी। तो लॉट ऑफ वेरिएशन, मतलब 5-5, 6-6 लाख का, जिसमें क्या हो रहा है, जो सेल्स पर्सन मार्केट में जा रहा है उसके लिए एक हैसल बन रहा है ये चीज। मतलब अगर मैं प्रैक्टिकल बातों को कर रहा हूँ, सॉरी, मतलब मैं जो देख रहा हूँ, मतलब मैं ईवी फील्ड से नहीं हूँ, बट व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। ये आपने बहुत ही सही पॉइंट ये किया है। हेलो, सॉरी टू इंटरप्ट। और यही सेम ये चीज सोलर में हो रही है, मतलब। Sorry, everyone. Actually, Himanshu ji, first we can cover the हाँ, आप content. कंप्लीट कीजिए, राइट। We will take all the question and answer at the last. If it will be Correct. work very good. ओके, सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के लिए। सो अब अभी क्या अपॉर्चुनिटीज है चार्जिंग सेक्टर में, और कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, थोड़ा मैं उस पर भी हाईलाइट करता हूँ कि चार्जिंग सेक्टर पे क्या अपॉर्चुनिटी है। देखिए, चार्जिंग सेक्टर कैसे ग्रो करता है, उसका इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ व्हीकल्स। जितना नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ेगा, 4 व्हीलर, बस, कुछ भी नंबर ऑफ व्हीकल बढ़ेगा, तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। अभी ये चिकन एंड एग की स्टोरी बनी हुई है, बट मैं समझता हूँ कि दोनों को साथ में ही, मतलब जो चार्जिंग इकोसिस्टम में है वो साथ में इसको ये नंबर्स पे काम करते रहे। जो व्हीकल साइड में है वो लोग तो व्हीकल परचेस कर ही रहे हैं, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के लिए। और अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो नो डाउट ये काफी हाई आरओआई वाला बिजनेस है। मैंने खुद मतलब एक्सपीरियंस किया कि ये 2 साल 3 साल की भी आरओआई आपको दे सकता है। तो ये देन फिर फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अभी इंडस्ट्री इतनी नेसेंट है कि आप अगर आज भी स्टार्ट करते हैं तो काइंड ऑफ फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको मिलेगा अगले 10-12 सालों में। गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट काफी इनिशिएटिव इंसेंटिव्स दे रही है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कुछ काम कर रहे हो, या आप कोई कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो, या आप व्हीकल साइड की मैन्युफैक्चरिंग में हो, तो गवर्नमेंट इंसेंटिव भी काफी दे रही है। देन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स भी आजकल इंडिया में काफी एक्टिवली काम कर रहे हैं कि आपको ब्रांड बिल्डिंग पे काम करना है, मैन्युफैक्चरिंग और बाकी अदर एक्टिविटीज को वो टेक केयर करते हैं। तो एक ये उस साइड में भी काफी आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन मिलेगा। देन हम लोग कैसे काम करते हैं, ई फ्यूल इज
is basically a contract manufacturing company and product development company. हम चार्जर डिजाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और सर्विस का काम लेते हैं। अभी बात करते हैं कि कौन इस इकोसिस्टम में काम कर सकता है, बेनिफिट ले सकता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुल है कि आप किसी भी तरीके से ईवी चार्जिंग इकोसिस्टम में अगर काम करने जाते हैं एज अ सीपीओ, एज अ मैन्युफैक्चरर या एएमसी, आईएनसी सर्विसेज या सॉफ्टवेयर साइड में कुछ भी काम करते हैं, तो वो एक एंटरप्रेन्योरशिप तो यहाँ पे है ही। देन डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, जो लोग एग्जिस्टिंग डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप बिजनेस मॉडल पे आप जो पुराने तरीके से काम कर रहे हैं, वो भी इस सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं। जैसे जैसे नंबर्स बढ़ रहे हैं तो कुछ चार्जेस होते हैं, छोटे चार्जेस अगर बात करें घरों पे चार्जेस लगते हैं, तो हर कोई उसको ऐसा नहीं है कि कंपनी से खरीदने जाता है, तो लोकल डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को सर्च करते हैं, तो वहाँ पे एक आपको काफी एक्टिव बिजनेस मिल सकता है। देन इन्वेस्टर्स हैं तो नो डाउट आजकल वीसीज और पी फर्म्स का तो फेवरेट है क्लाइमेट चेंज और ई मोबिलिटी बिजनेस को फंड करना, तो वो अपने आप में एक अलग बहुत बड़ी बिजनेस है। देन लैंड ओनर्स के लिए उनकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को कैसे मोनेटाइज करना है। आप आजकल देखेंगे रिजॉर्ट ऑफिसेस, मॉल्स और जो होटल्स वगैरह होते हैं, वो अगर उनके पास थोड़ा भी एरिया 1000 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट अगर कुछ भी पड़ा है, तो वो उसको ईवी चार्जिंग सिस्टम के लिए दे देते हैं, जहां पर उनको मोनेटाइजेशन मिल जाता है। देन स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल के लिए इस इंडस्ट्री में तो जितना मैंने ऊपर सारे टॉपिक कवर किए, सब कुछ स्टूडेंट या प्रोफेशनल के लिए एप्लीकेबल है, वो कहीं से भी किसी भी एरिया में जा करके काम कर सकते हैं। और फिर इसके बाद जो एग्जिस्टिंग ईवी मोबिलिटी इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं, गैराजेस होते हैं, फ्यूल स्टेशन होते हैं या पार्ट्स रिसेलर होते हैं, वो तो नो डाउट वो किसी भी टाइम इस इकोसिस्टम का पार्ट बन सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज मैं आपको कवर करा चुका हूँ। देन मैं ई फ्यूल की हम ई फ्यूल कैसे काम करता है उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। So we started eFuel in 2019 as a product development and manufacturing company, और एक सिंपल सा आइडिया है कि हमें था तब कि हमें इस इंडस्ट्री में काम करना है। अभी प्रोडक्ट कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, कब बनाएंगे, वो हमने तब डिसाइड नहीं किया था, बट ग्रेजुअली इकोसिस्टम में ग्रो करते करते हम काफी आगे तक आ चुके हैं। 2018 में हमने ये आइडिया सोचा, 2019 में वी स्टार्टेड द डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग वर्क। 2021 में हमने अपनी फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एस्टेब्लिश करी है भोपाल, मध्य प्रदेश में। एवरीबडी नोज अबाउट भोपाल, इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया। और उसके बाद तो हार्डवेयर में काफी डेवलपमेंट करने के बाद 2022 में हमने प्रोडक्ट को काफी रोबस्ट बना लिया, रिमोट एक्सेस सिस्टम हमने बनाया और यूपीआई बेस्ड सिस्टम भी इंटीग्रेट किया। देन रिसेंटली अभी हमने एक नया 2024 में हमने 1.2 मेगावाट 16 कनेक्टर भी प्रोडक्ट डेवलप किया है, जो कि हब चार्जिंग या फ्लीट चार्जिंग के लिए है। और अब कंटिन्यूस इसी डायरेक्शन में ग्रो करने का हम कंटिन्यूस ग्रो कर रहे हैं। चार्जर्स की बात करें तो 3.3 किलोवाट से लेकर के 22 किलोवाट तक एसी, एज आई अर्लियर मेंशन की 22 किलोवाट तक हम बना रहे हैं। देन डीसी चार्जर्स में 30 किलोवाट से लेकर के 360 किलोवाट डीसी चार्जर डुअल गन में जो मार्केट स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से ये प्रोडक्ट भी हम बनाते हैं। और कुछ सोलर बेस्ड एप्लीकेशन के लिए भी हमने चार्जर बनाया है, जहां पर आप डायरेक्टली सोलर से पावर लेकर के चार्जिंग कर सकते हैं। रिसेंटली हमने ये कमीशन भी किया है अहमदाबाद में, जो कि सोलर ऑपरेटेड है, और चार्जर कैपेसिटी 600 किलोवाट, टोटल 200 किलोवाट के 3 चार्जर लगा करके हम 600 किलोवाट कैपेसिटी पे किया है। एज आई मेंशन, हम एक मल्टी गन चार्जर भी हमने डिजाइन किया है, जो रिसेंटली ही अभी बना है, और इसको भी हम अभी डिप्लॉय करने वाले हैं। मल्टी गन चार्जर इज स्पेसिफिकली मेड फॉर द हब चार्जिंग, जहां पर आपको 10, 12, 15 हैवी एचईवीज चार्ज करनी है, तो ये साइमल्टेनियसली सारे गाड़ियों को पावर कर सकता है। साथ ही साथ इसमें कुछ चार्जिंग लॉजिक्स होते हैं, जो कितनी डिमांड है गाड़ी की तरफ से, कितना डिमांड है, और उसको कैसे बैलेंस आउट करना है, ये सारी चीजें इस टाइप के मल्टीगन चार्जर्स में होते हैं।
नेक्स्ट हमारा एक प्रोडक्ट है, आप आजकल आप देख रहे होंगे मोबाइल ईवी चार्जर, बैटरी बेस्ड मोबाइल ईवी चार्जर आजकल काफी कॉमन है। ये रोड साइड असिस्टेंस देने के लिए या कोई ऐसी लोकेशन जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना मुश्किल हो रहा है, स्पेशली मेट्रो सिटीज जैसे मुंबई, बैंगलोर, ये इन लोकेशंस में ऐसा होता है कि आप जगह तो है बट इंफ्रास्ट्रक्चर लाना मुश्किल हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का प्रॉब्लम है या पार्किंग का इशू है, तो उन जगह पे आप ऑन डिमांड चार्जिंग के लिए भी एक प्रोडक्ट हमने अभी जस्ट बनाया है। देन टाइप 6 चार्जर है जो कि भारत चार्ज अलायंस अभी काफी हाईलाइट हो रहा है फॉर 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर्स के लिए। ये प्रोडक्ट भी हमने रेडी किया। सिंस वी आर इन द इकोसिस्टम सिंस 2019, तो सर्विस देखिए, चार्जर एक इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है जहाँ पे सर्विस आपको हमेशा देनी होती है। मतलब आज वन टाइम सेल्स है, सर्विस आपकी 10 ईयर्स अप टू 10 ईयर्स तक होती है। तो ये इसको एड्रेस करने के लिए हमने अपना सर्विस नेटवर्क भी पूरे इंडिया में डेवलप किया हुआ है इस टाइम पे। और ये ऑन रोल और कॉन्ट्रेक्चुअल दोनों को कंसीडर करते हुए हमारा सर्विस टीम नेटवर्क है। मेजर क्लाइंट्स की बात करूं तो हम दो तरीके से काम करते हैं। वन इज सीपीयू बेस्ड बिजनेस, द अदर वन इज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। सीपीयू में स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो डुअल गन और सिंगल गन चार्जेस होते हैं वो, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेकर के प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिजाइनिंग से लेकर के और अल्टीमेट स्केल प्रोडक्शन तक हम सारा काम करते हैं। ऐसे हमारे कुछ क्लाइंट्स भी हैं यहाँ पे। इसके अलावा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स तो वो करना ही है। वो आजकल गवर्नमेंट के काफी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसको कैटर करने के लिए हमारे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जाते हैं। सर्टिफिकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है चार्जिंग में, बिकॉज जब आप कोई प्रोडक्ट पब्लिक यूज केस में डालते हैं तो वहाँ पे सर्टिफिकेशन और कंप्लायंस बहुत ज़रूरी होता है। इसको एड्रेस करने के लिए हमने अपना खुद का भी टेस्टिंग लैब सेटअप किया हुआ है जो कि प्रोडक्ट को सर्टिफाई करता है और एज पर कंप्लायंस, एज पर आईसी स्टैंडर्ड हम उसको कंप्लाई करवाते हैं। इसके अलावा हम लोग काफ़ी सिंस वी आर ARAI इंक्यूबेटेड स्टार्टअप, तो हमें काफ़ी कुछ इनपुट्स ARAI से भी मिल जाते हैं। इसके अलावा और अदर लैब्स भी हैं, NABL लैब्स हैं जहाँ पर हम लोग अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करवाते रहते हैं, स्पेशली CPRI लैब हो गया और ARAI के जो अलग लैब्स हैं उनमें। प्रोडक्शन एरिया का मैं पहले ही मेंशन कर चुका, हम लोग भोपाल से ऑपरेट करते हैं। 10,000 स्क्वायर फीट के एरिया में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अभी, और इस पे सारा कुछ कैटर करते हैं। AC चार्जर, DC चार्जर, मल्टीगन चार्जर, बैटरी बेस्ड चार्जर। टेस्टिंग एरिया के लिए भी हमारा खुद का लैब सेटअप है जहाँ पे हम सारा कुछ टेस्टिंग और फंक्शनल टेस्टिंग और लोड टेस्टिंग वगैरह करते हैं। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हमने काफ़ी प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए किए हुए हैं, सच एज NHPC, CPRI, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और PGCIL, NTPC, ये सब हमारे क्लाइंट हैं आज की डेट पे। और अक्रॉस इंडिया हम लोग अभी 1500 प्लस चार्जर्स डिप्लॉय कर चुके हैं। ये डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट तो नहीं बोलूँगा मैं, बट CPUs और अदर हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू हम 1500 प्लस चार्जर्स डिप्लॉय कर चुके हैं। सो आज के सेशन में मैं सारा कुछ आपको ई-फ्यूल के बारे में बता चुका। थैंक यू सो मच एवरीवन। एनी क्वेश्चंस नाउ? Yeah, thank you, Himanshu. Now we can open the session for Q&A. So we can take the questions from the audience, if any. Yeah. Yes, Himanshu ji, my question is आपने बताया कि आप 10 साल का वारंटी देंगे चार्जर्स पे ऊपर, राइट? तो हम लोग जो है वो इंडिविजुअल चार्जिंग स्टेशंस जिन को भी मतलब लगाने हैं, उनको हम एंड टू एंड पूरा का पूरा सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं बाय एग्रीगेटिंग विद दी फ्यू चार्जिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लाइक वन ऑफ योर्स, ठीक है? नाउ द पॉइंट इज, माय क्वेश्चन हियर इज, सपोज इफ हमें AMCs बेचने हैं फॉर दी चार्जर्स एंड ऑल, राइट? तो यू मीन टू से 10 साल जो है वो हर ब्रांड अपना आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कंपल्सरी, every manufacturer is 100% giving the 10-year warranty and after sales service on their own,
Is it a government compliance? Yeah, it is varying between the manufacturer. सर मैंने ये कहा है कि ये प्रोडक्ट डिजाइन लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट इज 10 years। आप चार्जर को चाहे तो 10 साल तक भी My चला question सकते is, हैं। okay. My question is, if somebody uses the charger manufactured by eFuel, right? Then in that case, as a parent company, eFuel, कितने साल का आप वारंटी देते हैं? अप टू 10 years तक। अप टू 10 years तक की चार्जर की वारंटी दे रहे हैं। हाँ। एंड ये वारंटी में So, क्या क्या कवर होगा? बाय डिफॉल्ट चार्जर्स पे 2 years का वारंटी आता है, फिर एडिशनल वही वारंटी मैं बोल रहा हूँ। एक्सटेंशन प्रोग्राम। हाँ, so एडिशनल that is वारंटी where, एक्सटेंशन yes. अगर आप उनको Because I ऑप्ट come करते हैं from the insurance background also, तो हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरीज है, जो कि somebody has put it very rightly कि उसके अंदर मेजर कॉस्ट तो मतलब चार्जर्स का ही है, राइट? इसका ईवी के अंदर, तो उसकी इंश्योरेंस की पैक हम लोग एक जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइडर से एक पॉलिसी अंडरराइट करवा के पूरा का पूरा एक इंश्योरेंस पैक का हम लोग ये लॉन्च करना चाहते हैं। दैट इज मतलब आप मेरा पॉइंट समझोगे अभी? नहीं, मैं समझ गया सर। देखिए, ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं कि आपने एक बार लगाया और आप भूल गए। इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट की रिक्वायर्स एक होता है मेंटेनेंस। मैन्युफैक्चरर की ओर से गिवन वारंटी पीरियड, और उस हाँ। वारंटी पीरियड में बीइंग अ यूजर आप एक चीज मतलब certain things will be covered by the manufacturer, few more things will not be covered, which हाँ। those points which is not covered by the parent company or manufacturing company, people like us will put it across to the general insurance providing company and underwrite the whole program, right? Against certain premium you get this particular policy vetted at your company and give me the final nod, on basis of what we will define our product portfolio कि भाई कि क्या प्राइस पॉइंट पे हम लोग क्या क्या ऐसी चीजें कवर करेंगे जो मैन्युफैक्चरर खुद कवर नहीं कर रहा है वारंटी पीरियड के दौरान या आफ्टर वारंटी। जैसे आपने सही बताया कि 2 साल की आपकी वारंटी है, उसके बाद वारंटी एक्सटेंशन प्रोग्राम के अंदर बिकेगा, राइट? तो ये सारा जो पोर्टफोलियो है वो दिस इज वेयर माय क्वेश्चन कम्स फ्रॉम। सो बियॉन्ड डिफॉल्ट वारंटी पीरियड आप बहुत सारे वारंटी एक्सटेंशन प्रोग्राम है, एएमसी प्रोग्राम है, सीएमसी प्रोग्राम है, बहुत कुछ ऑप्ट कर सकते हैं सर। और मतलब ये चार्जर की डिजाइन लाइफ 10 years है, बट 10 years चलाने के लिए आपको उसको प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा। उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। चार्जर्स 10 साल चलते हैं आराम से। इवन आप घर पे इन्वर्टर भी देखिए तो 10 12 साल चलते हैं आराम से। वो इसीलिए क्योंकि अगर आप उसको मेंटेन करते हैं तो वो चलेगा। बराबर है। अभी नाउ दी सेकंड पॉइंट इज, आपने बोला कि गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है, अभी ये गवर्नमेंट की जो सब्सिडी कुछ स्टेट ने अभी फिलहाल अनाउंस कर दी है कि 25% जो है वो चार्जिंग स्टेशन जो लगाता है उसको 25% तक की सब्सिडी है। मुझे ये जानना है कि व्हाट आर दी, क्या ये चैनल कौन सी है जिसके थ्रू ये सब्सिडी ऑप्ट की जाए? पर्टिकुलरली किस स्टेट के लिए बात कर रहे हैं सर आप? एमपी एंड पंजाब। हम तो पैन इंडिया सर ये अभी करेंगे चार्जिंग स्टेशन का हाँ बिजनेस, बिल्कुल, हर स्टेट में अलग अलग सब्सिडी है। जो अभी रिसेंट सब्सिडी पीएम ई ड्राइव की सब्सिडी आई है, तो उसमें एमपी में वो 25% अनाउंस हो चुकी है अभी 2 3 वीक पहले ही, ठीक है? हाँ अब बिल्कुल। हमें ये हाँ जानना है कि इसका मोडस ऑपरेंडी कैसे होगा, और एमपी में अगर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, बिकॉज हमारे ऑपरेशंस और हमारी टीम ऑलरेडी वहाँ पे एक्टिव है और वहाँ पे स्टार्ट कर रही है, ठीक है? वी हैव गॉट फ्यू इंक्वायरीज ऑल्सो कि जहाँ पे जिनको सर्विस अपना ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने हैं। तो नाउ कम्स दी सब्सिडी पार्ट, तो उसकी राइट एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग अगर हमें कुछ आप जानकारी दे सकते हैं तो हम लोग प्रॉपरली अपने आप को वो हिसाब से मोल्ड करके ही आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, अभी इसका चैनल डिसाइड नहीं हुआ है कि कैसे सब्सिडीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
बट Okay. हाँ ये है कि अनाउंसमेंट सारे स्टेट्स ने कर दी है कि चार्जिंग इंफ्रा पे कितना सब्सिडी देना है, और अगर सब्सिडाइज टैरिफ देना है तो वो कितना रहेगा, सारा कुछ अनाउंसमेंट हो चुका है। बट वो चैनल अभी तक नहीं आई है। चैनल आने में आई बिलीव 2 महीने और लगेंगे। हर स्टेट के लिए ये सेम है। इवन हम एमपी से ही हैं, तो मैं काफी कुछ एक्टिवली देखता रहता हूँ ये लोग कैसे काम कर रहे हैं। मैं जो डिपार्टमेंट बन रहा है उस पर भी मैं एक्टिवली बात करता हूँ। तो वो अभी वो चैनल हमने डिसाइड नहीं कर हमने ये सुना है कि गवर्नमेंट इंडिया की ओर से कुछ रेगुलेटरी भी फॉर्म हो रही है, जो कि हाँ लाइक हाँ पेट्रोल एंड डीजल फ्यूल, वहां पे कुछ हाँ हाँ कंप्लायंसेस रेगुलेशंस भी आ रहे हैं करके। तो वो क्या टैरिफ पे बिल्कुल। आएंगे, किस चीज पे वो लोग लेके आएंगे? तो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, अभी बीएचएल डिस्कशन ये है कि बीएचएल को रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का है, जो कि बना ऑन द दिया ना, टॉप वो ऑफ आ गया, वो ऑन द क्लियर टॉप हो ऑफ गया, एवरीथिंग वो पहुंच गया काम करेंगे। अभी। बट यस यस। जब तक फाइनल ड्राफ्ट या फाइनल डॉक्यूमेंट हमको नहीं मिलता है जिसमें ये पूरा चैनल डिसाइड करे कि कैसे सब्सिडी डिसबर्सल होगा, और कौन सी ऑडिटिंग एजेंसीज होंगी, एग्जीक्यूशन एजेंसीज कौन सी होगी, जब तक फाइनल ड्राफ्ट नहीं आएगा तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते। बट मुझे लगता है अगले 2 महीने में ये सारा कुछ फाइनल हो चाहिए। इवन इन एमपी स्टेट, महाराष्ट्र ने भी रिसेंटली अभी अनाउंस किया, काफी कुछ अनाउंस किया है महाराष्ट्र ने। यस बट यस। वो हाँ कैसे हाँ। करने वाले हैं वो अभी तक बताया नहीं है। यस यस यस। हम लोग बॉम्बे सेम बेस्ड दिल्ली कंपनी है। पॉलिसी भी 1 महीने पहले ही आई है सर। हाँ राइट राइट, करेक्ट। ठीक है, तो बस एक यही महीना जानना और था रुकना मुझे। चाहिए हमें, काफी कुछ हमको इन्फॉर्मेशन हम्म। मिल जाएगी। अच्छा, सिंस आप लोगों का मैन्युफैक्चरिंग और सारी की सारी कंपनी वहाँ पे भोपाल बेस्ड ही है, तो इस चीज में मतलब ये हमें एमपी में भी हम लोग फुल फ्लेजेड स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपकी ओर से हमें क्या मतलब एक सपोर्ट लेवल मिल सकता है इफ वी प्रिफर चार्जर्स फ्रॉम ई फ्यूल एज अ मैन्युफैक्चरर? क्योंकि हमारे पास जो हम लोग कोटेशन लिया है वो 6-7 जो की प्लेयर्स है ये पर्टिकुलर स्पेस में, चार्जिंग चार्जर मैन्युफैक्चरिंग के स्पेस में, उनके अभी तक तो हम लोग ये करके हमारा बिजनेस मॉडल बनाया हुआ है। तो तो डिस्कस करते हैं सर, मैं आपको अलग से कॉल करके फिर हम ये सारी चीजें ठीक है, डिस्कस करेंगे। बट ठीक है। अगर ऐसे मैंने बात, इसमें चैट चैट में ड्रॉप कर दिया है मेरा कॉन्टेक्ट हाँ डिटेल्स वगैरह। हाँ, तो ये ठीक है जी। बात करें तो ओके। देखिए, हमारा मैन्युफैक्चरिंग के अलावा भी हम काफी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। अगर बात करूँ हम्म। ट्रेनिंग सेशन भी हम लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं अपने पार्टनर्स के लिए। स्कूल और कॉलेजेस में भी हम ट्रेनिंग सेशन देते रहते हैं, इंटर्नशिप्स देते हैं। अभी हम आईटीआईज में जाकर के स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज भी चलाते हैं, जिसमें आप चार्जर लगाना, चार्जर डायग्नोस करना, चार्जर बनाना, बहुत सारी एक्टिविटीज अराउंड द चार्जर करने के लिए हम लोग ओके ओके। काफी एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो हर टाइप से हम आपको सपोर्ट दे सकते हैं। बाकी सारी डिटेल हम एक बार कॉल पे कनेक्ट होकर के डिस्कस कर सकते हैं। मैं मतलब श्योर सर, सिर्फ थैंक यू सर। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, इकोसिस्टम को ग्रो कराने के लिए भी हम काफी कुछ अपनी तरफ से ट्राई करते रहते हैं। इंटर्नशिप 45 डेज 60 डेज की इंटर्नशिप भी ऑफर करते हैं हम लोग, जो इकोसिस्टम में पार्ट लेना चाहते हैं। स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज भी हम चलाते हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं खुद एक वोकेशनल ट्रेनर था नाइस में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर अच्छा। एनर्जी में मैं ओके। वोकेशनल ट्रेनर था। सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी पे मैं ट्रेनिंग देता था। तो ट्रेनिंग का मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो वो हम अभी भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसा ओके। काफी स्किल डेवलपमेंट का ये चल रहा है। बाकी हम एक बार कनेक्ट होंगे तो बिल्कुल मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। डेफिनेटली। तो आपका कॉन्टेक्ट इंटर्नशिप आप डिटेल्स मिल भोपाल में गया ही है। देते हैं? जी सर। इंटर्नशिप भोपाल में ही देते हैं आप? हाँ भोपाल में सर। अभी ये सिर्फ भोपाल तक ही लिमिटेड है, क्योंकि हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भोपाल में ही है। और हमारे यहाँ एक काफी बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क करके है, जो कि आईटीआई का बहुत बड़ा कैंपस है इंडिया, सेंट्रल इंडिया में। तो उनके साथ हम काफी कुछ एक्टिवली काम करते रहते हैं। अभी भोपाल के बाहर हमने कुछ किया नहीं, बट हाँ हम भी ट्राई कर रहे हैं कि हम स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज अलग अदर स्टेट्स में भी एक ड्राइव के थ्रू करें, कि साल में एक बार या 2 बार एक स्टेट को सिलेक्ट करके वहाँ पे हम कुछ स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज कर पाए। Right. हाँ, Is there बाकी any हम question from more audience? Any question? Dr. P.B. Karandikar, you have already put your question in the registration form. Shall you speak directly with Himanshu Patel?
Dr. P.V. Karandikar. I think he is not there in the current He's, session. He's in the meeting. So I will share his question. He asked question about EV charging infrastructure, costing related things. So EV charging infrastructure may be important, but the rate they charge today are quite high for uh, kilowatt wise, unit wise, can say. So EV charging infra with affordable rate like 5 to 6 per unit. Is it possible to happen in the coming future? Is it possible to? In future means 5 to 6 rupees per unit. Right now, the charge per kilowatt unit, I think maybe 40 maximum 40 45 rupees. सर सो टू बी ऑनेस्ट ये कहना तो मुश्किल है कि 5 रुपीज 6 रुपीज पर यूनिट पे चार्जिंग हो पाएगी, बिकॉज ईयर ऑन ईयर टैरिफ इनकमिंग टैरिफ तो बढ़ ही रहा है, तो आई बिलीव ये तो पॉसिबल नहीं है. बट अगर इफ गवर्नमेंट कम्स विद सम स्पेसिफिक स्कीम पर्टिकुलरली फॉर द ईवी टैरिफ, ये सब्सिडाइज टैरिफ दे रहे हैं 1 रुपए 2 रुपए या 3 रुपए पर यूनिट पे, तो पॉसिबल है. बट आज की डेट में बिकॉज द इनकमिंग टैरिफ इज close to 7 8 10 rupees, it depends on the state on state, but in Madhya Pradesh only it is close to 7 rupees per unit. So the selling price would not be lesser than 14 15 rupees, because there is a huge cost involved in setting up a EV infrastructure. Then also there is operation and maintenance cost and other some other costs incurs regularly. So I don't believe that the price would come so less, close to 5 or 6 rupees per unit. बट हाँ 15-16 तक ये पॉसिबल है, जब तक गवर्नमेंट कोई इसकी स्पेशल स्कीम लेकर के नहीं आती और वो खुद भी 1 रुपए 2 रुपए के रुपए पे ईवी का टैरिफ नहीं डिसाइड करती है, तो 5-6 रुपए में पहुंच बोलना नॉट पॉसिबल. Himanshu ji, So, other one- than yeah, sorry. Yeah, Jitendra ji, go ahead. मेरा क्वेश्चन हिमांशु जी के लिए है, अदर देन दिस टैरिफ पार्ट which you rightly said that it will purely depending upon the discoms, distribution company, electric distribution companies, right, कि वो क्या चार्ज पे इनकमिंग टैरिफ दे रहा है, बिकॉज जो चार्जिंग स्टेशन एस्टेब्लिश कर रहा है तो उसके पास कोर एरिया ऑफ अर्निंग इज दैट पर यूनिट चार्ज ओनली, राइट. तो मेरे हिसाब से वहां पे क्योंकि उसको पूरा का पूरा इट इज बेसिकली अ मिक्स ऑफ कैपेक्स एंड ओपेक्स मॉडल, यस, पूरा का पूरा कैपेक्स का जो बर्डन है वो बेचारा वो लेके चलेगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट करके, तो उसको रिटर्न्स भी तो वैसे देने पड़ेंगे, राइट. तो इट इज नेवर पॉसिबल कि 4-5 रुपए पे आए, बिकॉज गवर्नमेंट हाँ 1-2 रुपया भी करेगा तब भी 4-5 रुपए पे नहीं आएगा, क्योंकि डिफरेंस ऑफ 4-5 रुपीज में उसका जो पूरा ओपेक्स है वो नहीं रन कर पाएगा. बिल्कुल सही बात है. Yeah, initial investment will never be lesser than 10 lakhs rupees. If at Correct. all I want to, initiate with at least one AC and one DC charger, which is minimal requirement. क्योंकि किसी के पास टाइम, जिसके पास ज्यादा रहेगा वो AC चार्जर में चार्जिंग करवाएगा, जिसके पास टाइम की कमी रहेगी वो फास्ट चार्जर यूज करने के लिए बोलेगा, राइट. सो वेरिन DC चार्जर की कॉस्टिंग जो है वो बहुत हाई है. हाँ ये सर, देन हमें ये भी देखना है कि व्हाट्स द यूटिलाइजेशन रेट. अभी मैं जनरल यूटिलाइजेशन की बात करूं, सो इट इज अराउंड 2 hours 35% in a day. So बहुत कम है. I think 35% is the utility ratio what we are targeting as a business. कि भाई एक चार्जिंग स्टेशन आप लगाओ, पर चार्जर इट शुड बी एक्टिव फॉर एक्टिव 35%, एटलीस्ट मिनिमम उतना आपके पास ट्रैवल्स मिल जाए, ठीक है, जिससे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है कि फर्स्ट ईयर में तो इट विल बी व्हाट वी आर कमिटिंग इज 18 to 20% will be the ROI, but from second year onwards, it will be varying between 24 to 30%. And yes, third year onwards, because by that time उतने vehicle भी हो जाएंगे, उस बंदे को अपनी चार्जिंग स्टेशन की यूटिलिटी भी मिलेगी. थर्ड ईयर onwards, it will grow beyond 35%, and it is up to him कि कितना परसेंट की ROI वो लेना चाहता है. So my question here is, other than the discom tariff, what all do you think will be the factor on which we should consider as a earning potential for the charging station manager?
और ऑपरेटर। टैरिफ के सिवाय वो कहाँ कहाँ से और ऐसा क्या पॉइंट्स है जहाँ से वो अपनी इनकम को बढ़ा सकता है? सर राइट। देखिए कि हम मैं बात करूं कि अगर हम बस चलाने के लिए सबसे बड़ी कॉस्ट क्या इन्वॉल्व होती है, उसमें है फ्यूल। वैसे ही सेम इसमें हमारे चार्जर्स में फ्यूल क्या है, इनकमिंग टैरिफ, इनकमिंग इलेक्ट्रिसिटी, वो वही तो हमने डिस्कस कर लिया सर, हाँ वो तो मेजर डिस्कस कॉस्ट, कर लिया। मेजर कॉस्ट वहीं पे मेजर जाती तो है। वही है, मेजर हाँ मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम भी वही है और जाती है। मेजर कॉस्ट भी वही है। हाँ, फिर इसके अगर आप अपना अगर किसी को अपना आरओआई हाई करना है तो उसको ये देखना है कि उसकी कैपेक्स कॉस्ट कैसे डाउन करी जाए। चार्जर का प्राइस तो ठीक है, आप कुछ करके आप कम कर सकते हैं, कहीं आपने कोई अदर ब्रांड में गए वहां से कम प्राइस ले, बट अदर देन चार्जर और टैरिफ, इनकमिंग टैरिफ, आपको और कैपेक्स कॉस्ट में आपका इलेक्ट्रिकल इंफ्रा कितना सेव कर सकता है, आप इलेक्ट्रिकल इंफ्रा में जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना सेव कर सकते हैं, अदर ओएनडम कॉस्ट जो है वो कैन आपको। यू प्लीज एलोबरेट ये इलेक्ट्रिक इंफ्रा वाला जो पॉइंट आप बोल रहे हो, थोड़ा डिटेल में बताएंगे? इलेक्ट्रिक इंफ्रा वाला पॉइंट से मेरा मतलब ये है कि अगर हम ऐसा होता है कि अगर आप कोई एक बैरन लैंड पे जाकर के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश करते हैं तो चार्जर के अलावा आपको पूरा वहाँ पे ट्रांसफार्मर भी लेना है, वहाँ का फ्लोर भी कराना है, वहाँ पे एक शेड भी बनाना है और भी बहुत सारी तो एक्टिविटीज। गॉट इट। तो और ये पूरे बिजनेस में ठीक the सबसे है। इम्पोर्टेंट पार्ट विच प्लेस इज द लोकेशन। आपका लोकेशन जो है, जिस लोकेशन पे आप इंटेंड करना चाहते हो, दैट पर्टिकुलर थिंग इज वेरी, दैट इज वेयर द कंपनी लाइक अस हेल्प। ठीक है, कि सबसे पहले तो आप वो ज्योग्राफिकल पॉइंट जज कर पाए कि जहाँ पे करने से ये जो आपने बताया इंफ्रा का जो कॉस्ट है वो आप कम कर सकते हो, बिकॉज इट प्योरली, अगर अगर वहाँ पे डीसी चार्जर और एसी चार्जर दोनों लगाने हैं तो हमें वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो डिस्कॉम कंपनी है उनकी पास से ट्रांसफॉर्मर भी लेके आना पड़ेगा, राइट? and generally that process and that part is very much cost effective, I mean costly, क्योंकि हर स्टेट टू स्टेट, हर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड टू बोर्ड इट विल डिफर, to commission a transformer and get the permission out of that particular location. तो इसमें मेन चीज जो रोल प्ले करेगा वो लोकेशन होगा, चार्जिंग स्टेशन ऑपरेटर का कौन सा लोकेशन वो फाइनल कर रहा है, या हम हाँ उसे तो बोलते हैं कि भाई ये लोकेशन पे तेरा मिनिमम कॉस्ट हो सकता है। correct sir, so choosing the right location is somewhat which can drive down your ROI also. अभी अगर आपके पास कोई ऐसी लोकेशन है which already have this all the required infrastructure, आपकी कॉस्ट अगर एक 60 किलोवाट के स्टेशन पे 5-7 लाख रुपए की कॉस्ट आपकी अगर वो सेव कर देता है तो ROI एकदम से आपका जो 33% था या 35% आप टारगेट कर रहे हैं वो 50% तक जा सकता है। तो वहां करेक्ट। पे मतलब ये चूज करना बहुत एक आइडियल लोकेशन चूज करना बहुत ही जरूरी है और एक फैक्टर है जो आपके आरओआई को एकदम से चेंज कर सकता है। एंड व्हाट आर इसके द अलावा अदर सच पॉइंट? और सर अदर की बात करें, अगर चार्जर आपका सेफ है, सेफ्टी आपको इंश्योर करनी है चार्जर की, अगर वो सेफ है तो फिर चार्जर के ऑपरेशन या मेंटेनेंस के लिए आपको किसी मैन पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है। जनरली मैंने आजकल चार्जिंग स्टेशन सारे अनमैन्ड होते हैं एक्सेप्ट द हब और फ्लीट हब जो होते हैं, उसके अलावा अगर इंडिविजुअल स्टेशन है वहाँ पे तो अनमैन्ड होते हैं, तो वो कॉस्ट आपकी वैसे भी सेव हो जाती है। सर आप अदर देन चार्जर्स, आप ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम का जो सीएमएस है सॉफ्टवेयर, इसके जिसके थ्रू पूरा का पूरा पेमेंट वगैरह गेटवे वगैरह सारा इंटीग्रेट होता है, वो सारा साथ में देते हैं या ओनली चार्जर्स ही बेचते हैं? सो बाय डिफॉल्ट हम एक सीएमएस आपको फ्री देते हैं और हम आपको ये भी ऑफर करते हैं, अगर आप किसी और सीएमएस को ऑप्ट करना चाहते हैं तो उधर भी आप जा सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट हम एक सीएमएस फ्री देते हैं, सीएमएस और ऐप फ्री देते हैं। ओके ओके ओके। हाँ, बिकॉज हम एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हैं तो जनरली हमारे जो बायर्स होते हैं उनके पास अपने सीएमएस और एप्लीकेशन सिस्टम होता है, तो वो लोग हम्म। अपने सीएमएस के साथ ही जाते हैं। बट हाँ, अगर किसी के पास नहीं है तो हम डेफिनेटली देते हैं। करेक्ट, बिकॉज हमारा जो फॉर्मेट है वो फ्रेंचाइजी मॉडल है, हम्म। जिसमें पोपो मॉडल है, फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल। ठीक है, तो इसमें हम लोगों का प्लान ये है कि स्टेट वाइज हम लोग फ्रेंचाइजी, मास्टर फ्रेंचाइजी एंड इवन स्टेट बिजनेस पार्टनर, ठीक है, 3 लेयर है। और जो लोकल लोएस्ट जो डायरेक्ट पॉइंट है उसमें
बेस्ड ऑन दी एरिया एज वेल एज दी इन्वेस्टमेंट हम लोगों के 5 डिफरेंट फॉर्मेट है। हमारा मिनिमम फॉर्मेट स्टार्ट होता है 10 लाख रुपए से, ठीक है। तो इसमें मैं इसलिए इतना डिटेल आपसे पूछ रहा हूँ कि सो दैट आगे जाके हमें आपके साथ कंपनी के साथ चार्जर के लिए अलायंस करने के लिए समझ में। डेफिनेटली सर, करेक्ट करते हैं और मैं आपसे सारी डिटेल लूंगा और फिर हम देखते हैं कैसे इसको टेकअप करेंगे। राइट सर, थैंक यू सो मच। ओके, Thank you. Is there any question? तो बस मेरा एक यही है कि कोई भी चीज जो है ना, बस वी आर गोइंग इन अ वेरी गुड डायरेक्शन। बस एक यही है जो अभी मल्टीपल जैसे चीजें देखते हुए, क्योंकि आई थिंक इसका स्कोप डे बाय डे और 5 साल में तो ये ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली दे वांट टू कट डाउन द फ्यूल्स फ्रॉम ईरान, इराक वगैरह, ताकि हमारी इकोनॉमी स्टेबल बने एंड वी कैन रन द सिचुएशन लाइक एवरीथिंग, राइट। तो उस केस में मैं ये चाहता था, बीइंग एज अ चैनल पार्टनर या इंटर्नशिप करने आपके पास आता हूँ या जो भी है, एक ट्रेनिंग, सो दैट जब भी मैं पहले किसी कस्टमर से मिलूं तो मुझे अपनी नॉलेज इतनी होनी चाहिए, मुझे अपने कॉम्पिटिटर की नॉलेज इतनी होनी चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट वो सबसे ज्यादा बाईपास करके आगे बढ़े, राइट। बिकॉज जहां भी मैं, अगर मेरी ट्रेनिंग और मेरा अच्छा वो स्केलिंग रहेगी तो मैं ऑटोमेटिकली उस चीज को फ्यूल अप कर पाऊंगा। तो एक मेरा पॉइंट ये था कि अगर मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ तो मेरे को अच्छी ट्रेनिंग देके, ताकि फिर डेफिनेटली ऑटोमेटिकली फर्स्ट लीड मैं लेता हूँ, सेकेंडली कहीं भी कोई टेक्निकल इशू या कुछ आता है तो आई थिंक योर टीम इज देयर फॉर द सेम, सो दैट मेरे पास जो रीजन्स हैं वो यूपी एंड उत्तराखंड है, ठीक है। तो और डॉक्टर क्योंकि साहब क्या आप है, कहाँ पे बिलोंग करते हैं? मैं दिल्ली एनसीआर से हूँ, तो कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर की मार्केट में 2026 से अपना ईवी का बहुत जबरदस्त डीलरशिप वगैरह आने लगेंगी फॉर ईवी स्कूटर, बाइक, दीज थिंग। क्योंकि वैसे भी रेखा जी ने मना कर दिया बिल्कुल ऑटो उसको, जो सीएनजी वाले हैं, तो उनका तो Correct. बिल्कुल ही बैन ही हाँ कर दिया है। हाँ, एक तो तरह से इसलिए सीएनजी तो बैन ही हो गया है ना। बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि अभी सोलर के बहुत बड़े बड़े मेगावाट प्लांट्स आ रहे हैं, टेंडर गवर्नमेंट ने फ्लोट कर दिए हैं, जिसकी वजह से क्या है, जहां जहां ईवी लगेगा वहां वहां सोलर पैनल्स इज अ मस्ट। मतलब ये गवर्नमेंट की अब पोजीशनिंग आ गई है, बिकॉज इतनी बिजली नहीं आ पाएगी आपको, आपको सोलर से ही करना पड़ेगा आगे आने वाले टाइम। दोनों ऑप्शन है, हाँ दोनों ऑप्शन है। हाँ वी कैन इवन गिव दी कंबाइंड सॉल्यूशन कि भाई हाँ तेरा सोलर का इतना और इलेक्ट्रिसिटी का इतना, सो दैट जैसे हम लोग बात कर रहे थे अभी हिमांशु जी के साथ में कि भाई किस तरह से ये कॉस्ट को मिनिमाइज करके अपनी आरओआई बढ़ा सकता है। तो वन ऑफ द बिल्कुल। ऑप्शन यू राइटली सेड इज इट्स अ मिक्स ऑफ द कॉम्बिनेशन व्हाट वी सजेस्ट इन, जिससे कि ये कॉस्ट कम हो पाए। और राइट, बाकी तो अच्छे डॉक्टर अच्छे साहब क्रिएटिव आई आप वुड मुझे लाइक टू दें हैव सर, योर कॉन्टैक्ट हिमांशु सर। डिटेल ऑल्सो। हाँ, तो हिमांशु सर आप अच्छे अच्छे क्रिएटिव दें, ताकि मैं अपने मेरे जो 1000, 2000, 5000 का नेटवर्क है मैं उनमें फ्लोट करूं, बिकॉज आई एम बेसिकली फ्रॉम रियल एस्टेट बैकग्राउंड। सो आप समझ लीजिए मैं तो एक एसेट हूँ कि मेरे पास तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जमीनें लेके डाल रखी, राइट। तो डॉक्टर मुझे तो साहब उनको मैं जस्ट आपसे सजेस्ट डायरेक्ट करना कनेक्ट करना चाहता हूँ। कैन वी शेयर दी नंबर? कैन यू शेयर योर नंबर? है। हिमांशु या सर, हिमांशु जी let's आपके drop थ्रू, our contact आपके थ्रू details on the chat. Let's drop our contact details on the chat मैंने box मैंने and चैट में डाल you दिया can है, see it, मैंने मेरा connect with डिटेल it. चैट में डाल दिया है सर। तो 1 मिनट बस डॉक्टर लूंगा। साहब आप भी हिमांशु सर, मैं जैसे आपसे एसोसिएट हो रहा हूँ ई फ्यूल से, तो मैं चाहता हूँ बस मेरी ट्रेनिंग वगैरह प्रॉपर हो, ताकि मैं आपके लिए अच्छा बिजनेस करके दूं मार्केट में। मेरी बस ये रिक्वेस्ट है। तो बिल्कुल, मैंने पहले भी मेंशन किया कि वी डू प्रोवाइड सच काइंड ऑफ ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप, और हम एक बार फोन पे आप कनेक्ट चाहेंगे होके मैं भोपाल पे आ जाऊंगा ट्रेनिंग के लिए, तो मुझे कोई बिल्कुल इशू नहीं। भोपाल ही आना पड़ेगा, यहीं पे ट्रेनिंग सेशन हम कर सकते हैं पूरा। तो ठीक मैंने चैट बॉक्स पे अपना नंबर भी ड्रॉप किया है और आगे उसको टेकअप कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। So, yeah, we can stop here today. I hope is no question from audience. Is if नहीं नहीं there, सर, आप then और क्वेश्चन लेना भी मत आप, क्योंकि हिमांशु सर को थोड़ा फ्री छोड़ो, बहुत क्वेश्चन आंसर हो गए हैं, तो अदरवाइज वो नेक्स्ट सेशन होगा तो फिर ठीक है। थैंक यू अर्पण thank जी। you. So now थैंक we यू। at the end of the session. So thank you, Himanshu sir, थैंक for यू giving जितेंद्र your जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। experience with our audience. I hope eFuel will grow in very every states in India,
And पर मुझे बहुत अच्छा लगा हिमांशु जी ने जितना पेशेंस रखा है, मतलब नॉर्मली कोई इतना पेशेंस रखता नहीं है, क्योंकि लोग जब बीच में बोलते हैं तो ये मतलब ये एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन, और जो इन्होंने ट्रेनिंग करवाई है या सोलर में करी है, आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि मैं खुद सेल्स का हूँ, ये नहीं मक्खन लगा रहा हूँ, बट काइंड ऑफ ये मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि द वे ही हैज टेकन द थिंग्स फॉरवर्ड फॉर दिस। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। thank you, Thank you so Himanshu much. sir, and audience. Thank you, Thank sir. you so much. Yeah. थैंक यू।